Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. It's class 12 subject economics. Today we are going to start another chapter of our syllabus, that is money and banking. Dear students, before going to discuss what is money, what are its functions and other terms related to money, let us first discuss how does money came into existence and what are the difficulties that give to or that give rise to the invention of money. Dear students, there is a long history behind the evolution of money, यानी कि जो पैसा है इसका इर्तिका कब हुआ है, यानी पैसा कब इस्तेमाल होने लगा. डियर स्टूडेंट्स, इसके पीछे एक लंबी कहानी है. सो डियर स्टूडेंट्स, इफ वी वुड रियलाइज दैट फॉर विच purposes we use money, we usually use it for the exchange of goods and services. जब भी हम कोई चीज़ लेते हैं तो हम मनी का इस्तेमाल करते हैं, या हम जब भी कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो हम मनी का इस्तेमाल करते हैं. तो हमें ये समझ में आता है कि आजकल जो हम पैसा इस्तेमाल करते हैं वो हम एक्सचेंज, यानी कि हम इसमें क्या होता है, गिव एंड टेक. मैं पैसा देता हूँ, मुझे कोई सर्विस मिलती है, या मैं कोई गुड ले सकता हूँ, कोई कमोडिटी खरीद सकता हूँ. व्हेन आई टेक मनी, आई विल प्रोवाइड सम गुड, आई विल प्रोवाइड सम सर्विसेज. सो वी यूजुअली यूज मनी फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द प्रेजेंट वर्ल्ड. However, dear students, initially exchange was direct. That's what is direct. That is, exchange of goods was for goods. यानी कि पहले पैसा इस्तेमाल नहीं होता था तो क्या होता था इस्तेमाल, यानी कि इंसान अगर खरीदता कुछ तो उसके लिए फिर अगर पैसा इस्तेमाल नहीं करता था तो फिर क्या इस्तेमाल करता था. या अगर इंसान कोई चीज़ लेता था तो क्या अगर पैसे नहीं लेता था तो फिर किस चीज़ के बदले वो किसी और को वो चीज़ देता था. तो देयर इज़ अ ग्रेट लॉन्ग हिस्ट्री बिहाइंड दिस. सो क्या होता था उस वक्त, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ. पुराने ज़माने में क्या होता था, गुड वॉज एक्सचेंज फॉर गुड, यानी कि मैं आपको एक ऐसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ. द पर्सन हु हैड प्लेंटी ऑफ फूड ग्रेन्स बट नॉट क्लॉथ्स was exchanging a part of his food grains with the person who had a plenty of clothes but not food grains, and vice versa. इसी तरह होता था पुराने ज़माने में. So in those days wants were simple and the number of exchangeable goods was small. The system of this system, when goods were exchanged for goods, this system was known as barter system. So the system of barter was that goods were exchanged for goods, but this system didn't continue for a long time because there existed great difficulties and great inconveniences in this system, that is barter system, when goods were exchanged for goods. Due to increasing difficulties and inconveniences of the barter system, this led to the invention of money. So dear students, the difficulties which were faced under barter system were like this.
There was difficulty of double coincide of wants. ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ. Under the barter system, the first difficulty was that there has to be a double coincide of wants. For example, a person A must have wants that B requires. यानी कि बार्टर सिस्टम के तहत इंसान को ये ढूंढना पड़ता था कि अगर मेरे पास मिसाल के तौर पर बहुत फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी है, अब मुझे कपड़े की ज़रूरत होती थी, अब मुझे ये ढूंढना होता था ये कौन सा पर्सन है जिसको फूड ग्रेन्स की ज़रूरत है मगर जिसके पास कपड़ा बहुत ज़्यादा है. सो दिस वाज द इनकन्वीनियंस इन बार्टर सिस्टम. तो another difficulty was difficulty of common measure of value. So under this barter system there was no common measure of value. For example, मुझे शुगर के बदले, यानी कि पिछले ज़माने में कोई खांड के बदले कपड़ा लेता था या जिस चावल के बदले आटा लेता था या चावल के बदले कुछ और लेता था जो ज़रूरियात ज़िंदगी होती है. यानी कि सो देयर वाज डिफ़िकल्टी ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. और एक डिफ़िकल्टी थी इस बार्टर सिस्टम में. दिस वाज अ बिग डिफ़िकल्टी इन बार्टर सिस्टम. दैट वाज डिफ़िकल्टी ऑफ indivisibility. What do we mean by this indivisibility? Under barter system, a commodity, this barter system, I will understand you that what is the mean by difficulty of indivisibility. A commodity can be small, big and valuable. For example, if lemons are to be exchanged for mangoes, no difficulty arises because lemons and mangoes can be counted and exchange ratios can be decided. But there is a problem when an indivisible goods has to be exchanged for an divisible good. For example, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ. मुझे पुराने ज़माने में क्या होता था, अगर केले के बदले सेब लेता कोई या जिस आलू के बदले प्याज लेता था, ये आसान था कि इंसान गिनता इसने कितने केले लिए और मुझे कितने ये सेब लेने होंगे. दिस वाज पॉसिबल टू काउंट. या इसने 10 ही सेब दिए, मैं भी 10 ही दूंगा. इसने इस साइज के दिए, इतना वेट दिया, मैं भी इतना ही दूंगा. दिस वाज. मगर एक प्रॉब्लम थी यहाँ पर इस बार्टर सिस्टम में. जिन चीज़ों को हम यानी कि डिवाइड नहीं कर सकते थे. फॉर एग्जांपल, मुझे कभी कभार एक इंसान पर्सन ए पर्सन बी के साथ एक्सचेंज करता है. मिसाल के पर्सन ए के पास गाय है और पर्सन बी के पास कपड़े हैं, पर्सन बी के पास फूड ग्रेन्स हैं, पर्सन बी के सी के पास जूते हैं और कुछ जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं. अब पर्सन ए जिसके पास गाय है, इसको इन चीज़ों की ज़रूरत है जो बी के पास है. अब चूंकि गाय, अगर पर्सन ए को सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत थी, जैसा इसको सिर्फ फूड ग्रेन्स की ज़रूरत थी, अब वो ये देखता कि गाय, चूंकि गाय इन स्ट्रक्चर तो बहुत बड़ी चीज़ है, अब अगर इसको सिर्फ मिसाल के तौर पर अगर इसके पास गाय एक बड़ी गाय है, इसको सिर्फ 2 किलो चावल की ज़रूरत थी, तो ये इसके साथ एक्सचेंज कैसे करता. तो ये बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी थी बार्टर सिस्टम में. यानी कि चूँकि वो गाय को हिस्से नहीं कर सकता था, चलो मैं भी 2 किलो गाय के 2 किलो देता हूँ, आप भी चावल के 2 किलो ही दे दो, बिकॉज देयर वाज नॉट पॉसिबिलिटी ऑफ दिस डिविजिबिलिटी इन cow. So this was another difficulty, major difficulty in the concept of barter system.
So dear students, now in next lecture we will discuss another terms related to money. So this was all about today's topic. Thank you. Allah Hafiz Nasir.